My voice is audible? Yes, I can hear you, sir. Yes, sir. So we have started broadcasting this webinar today, and I can see participants getting in. The number is increasing. 13, 14, it's 16, 18. With the clock ticking, I can see every second 1 or 2 participants joining us in this webinar. Good morning, participants. My name is Piyush Pandey, and I am a senior lean practitioner with Vedzen, having worked with Vedzen Consulting for over 9 years now. I will be completing a decade now, and I will be moderating today's session. So we will wait for another 2 minutes, 2-3 minutes, so that we can let everybody participate in this program. Let everybody join. Good morning, Ankuji. Good morning, Pradeep Joshi ji. With me on the panel, I have today's speaker, Anup Gandhi sir. He has already logged in. He's ready. So it's 11:01 right now, and we have around 26 attendees right now. Good morning, Mr. Bhatt. So we have lots of people joining us today. 27 so far have joined in. 28. The number is increasing. I have Ms. Abha Gandhi ji, Mr. Amish Purohit, Ankur Dheer, Mr. Arun Jindal. We have Avinash ji. We have Deepak Bharadia ji. We have Mr. Hanumant Tikte, our team member. We have Jeevan Patil ji, Manish Patil, Manohar Kohikar ji. He's a very good friend of Mr. Gandhi. Last time, in the last workshop, I got to know that Mr. Manohar Kohikar is a very good friend, old friend of Gandhi sir. We are yet to chat on that, but we'll get to know more. We have Miss Monica Seth from Haryana joining us. Sorry, Himachal. We have Riya Verma ji. We have Samyak. Right. So we have plenty of people right now. Almost 30 people have joined in. More people will keep joining us. So since we have to work on a time-bound basis. Yes. Good morning, Dhruv ji. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes. It's a pleasure, sir, doing this program. So I won't take much time and get into the basics of this program. To say it again, my name is Piyush Pandey, and I'm going to moderate this session today. As a participant, I'm sure you'll be seeing some controls on your screen. So whether you're using a mobile or a laptop, you'll be able to hear us. So if you can hear me very clearly, please type Y in the chat box. Everybody, please. Yes. Thank you, Dhruvdeep. Thank you, Anurag. Thank you, Sarvanand sir. Thank you, Prohit ji. Thank you, Joshi ji. Yes. So the positive response from everybody. Now, Rajiv ji, thank you so much. Vidur ji, thank you so much. Now we are doing this program, so I'm sure you must be using a laptop or a mobile or a desktop, various media we all have become users, smartphone users, smart devices users. So let me just quickly run through a poll to check it out whether what kind of device are you using. So the first poll, yes, please need your answers. Please vote in. What device are you using to see or hear us in this session?
right? I hope everybody has answered. We'll run this poll only for 30 seconds. Thank you. Can we see the results? Okay, great. That's great. We have the results now. So 25%, that is 6 people, are using mobile. 67% are using laptop and desktop. And there are 2 people who are using iPads or tab also. Right. Thank you so much. Thank you so much for your feedback. So we have more than 30 participants joined in so far. We are expecting more people to join in. But there is something common in all of us today. We all want to understand and add real value in our profession, in our business, so that we can manage this post-19 COVID situation, isn't it? So today, in the next 1 hour, we, the Vezzen Consulting team, led by Shri Anup Gandhi ji, would be sharing with you how to discover the means to save significant money from your own operations for your organization. But before I jump into the session, let me brief you about Vezzen Consulting. And so here we go. The agenda, first things first, the agenda, 5 minutes we have already spent. So another 5 minutes, I'll be quickly giving you the introduction. Under 40 minutes on the session, on the much awaited topic. The other 15 minutes would be spent in question answers. Some guidelines for you: be very comfortable, be at ease, keep a pen and paper handy, write down your summarize your summaries, your points, your questions, and you can use the question box to put in your queries, or you can also use your chat box. These questions will be answered at the end of the session. We won't be taking any questions in the middle of the session. And there is one small request. You should block all the pop-ups and close all the internet consuming apps, so that you are able to hear us properly and you can see us very clearly. Now this program is not an awareness session, but it will give you a framework on how to discover the means. It is not a workshop or a full-fledged training session. It's a webinar. And for your delight, we will be sharing this recording after the webinar within 24 hours. Right, so Vezzen Consulting was founded by Shri Yogesh Vaghani in the year 2000 as Vezzen Institute. And his vision was to create a mini Japan on the Nagar Road. And now his vision has become our vision. Our vision is to be a global missionary for improving the top lines and bottom lines of our clients, of all companies we interact with. Luckily, we interact with many companies, and to bring prosperity to all stakeholders in business industries through total employee involvement and helping them becoming world-class organization. And we have been in this field for last 20 years now. Vezzen is a well-known brand in Lean Kaizen implementation. We have helped many organizations so far in all sectors, more than 10 sectors in fact, and 50 plus organizations. We have created 5,000 plus lean leaders who are driving their organizations towards operational excellence, towards business excellence. Now, here are some services we provide. We provide services in manufacturing. We provide services to forging industries, to jewelry companies, to kitchenware manufacturing companies, to steel companies, to pharmaceutical manufacturing companies, many companies in manufacturing sector. In construction sector, we help residential construction companies. In service, we help banks, we help hotels, in hospitals. In retail, we have helped companies like Tanishq, and all of these companies, we have helped them become world-class organization. Some logos on your screen now, you will be seeing all kinds of sectors, from heat exchanger manufacturers to heavy equipment manufacturers like JCB, banks like Abhyuday. It all started with the Milton story. Some other day we will hear from Mr. Vaghani about the Milton story, how he transformed it. Now we have helped companies like Autopress, Crescent, many companies. What did we do for them? We helped them improve their productivity. We helped them improve their quality, and we helped them reduce their cost. We could reduce their throughput time.
we help them become flexible, and also which gave them a high performance culture. You can visit our website www.vedzen.com for more details. You can visit the testimonial page. You can listen to many business owners, how we worked with them and what results we gave. And this was recognized by the industry also. Last year, we won the ET MSME Excellence Icon Award. Vedzen Lean Consulting Group was recognized in the education and training category, especially in the micro enterprise category. And we got the award, Excellence Award. Today's session, yes. Today's session is all about discovering the means to save significant money for company from your operations. I'm sure you must have received this in your inbox. That's why you have registered, right? So without much further ado, let me tell you about our speaker today. This is his second session on the post-COVID-19 series, Factory Gear Up series. Mr. Anup Gandhi. Shri Anup Gandhi ji has been a senior principal practitioner for over 5+ years with us. He's a practicing Lean Kaizen consultant and coach for performance improvement programs in small and medium-sized companies. He's a mechanical engineer with masters in management science, and he has been a manufacturing head, a factory head of an engineering company with 1,200+ workforce. That's a huge workforce. He's a seasoned professional with over 36 years of experience in diverse areas. He has served more than 20 different clients from textiles, process industries, engineering industry as a consultant, and has solved their business challenges, their operational challenges, and their people problems also. He has got trained from reputed institutes like IIM Ahmedabad, AOTS Japan, and he is blessed with intensive hands-on coaching from Japanese sensei like Takao Kashihara-san, Masaki Imai-san, Indian Guru Sri Narasimhanji, and he has a wide exposure to various industries spread over Japan, US, Germany, Denmark, Italy, and many more companies, many more countries. So I won't take much time, and signing out from here, I would hand it over to Shri Anup Gandhi ji to take over the session from here and share his insights on the much awaited topic. Thank you so much. Over to you, sir. Thank you, Piyush. I welcome all. दो वीक के पहले की बात है. I was talking to one of my clients. We were discussing on the downturn. We were discussing on the economy downturn. And suddenly he asked me one question. Sir, do you see that everything will become normal? I said, normal? Yeah. He said, पहले वाला, before COVID. देखिए, इसका मतलब before COVID we were normal. Our business was normal. Our economy was normal. याद करो, in the morning we used to start and return home after 12 hours. Normal. You all know, in those 12 hours, how many hours were real productive? We used to have long meetings, routine meetings daily. How much time out of that was productive? How many meetings we ended with a clear action plan? That if it was a meeting for cost reduction, so that means we knew exactly from where, how much we are going to reduce, what actions, who is going to take. If we were discussing, suppose in a meeting, an inventory issue, that means we had a clear action plan. You all know how the meetings used to take place. But we alone were not able to change, even though we wanted to. We knew this is not good enough. But kya kare? As an individual, we had no courage to fight out, to change. एक सिस्टम का भाग बन गए थे. It had become our routine. इस रूटीन को ही मैं कहता हूं दुष्ट चक्र, विशेष सर्कल. इस विशेष सर्कल में हम अटक गए थे. हम दूसरों को उसमें पुल कर रहे थे.
We were all pushing each other. क्या ये सही था? क्या यही नॉर्मल हमें चाहिए? हमें 60 दिन का ब्रेक मिला है। मुझे विश्वास है आप में से सभी ने इसके बारे में सोचा है। आप सभी जानते हैं क्या होना चाहिए, लेकिन कैसे करें? Ladies and gentlemen, I want to invite you for this discussion, for this thought process today, that we clearly go out of this webinar after 45 minutes with a clear thought process in your mind that how are you going to start, where are you going to start. So let's get into a screen sharing and see what we can do. पीयूष, आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद है? यस सर, बंद है सर। Just a minute. I'm trying to get a screen. Yeah. वर्जन का स्क्रीन कहीं चालू है, प्लीज उसको बंद कीजिए। Yes sir, all closed. Okay. Yeah. I hope we are able to see now the screen. So मैं पहली बात कर रहा था, पहले वाला आप उसे नॉर्मल कहिए, आई में से एबनॉर्मल, बट वॉट एवर। वहां से हमें एक विशेष सर्कल को ब्रेक करने के लिए जाना है और वहां से हम न्यू नॉर्मल की ओर जाने वाले हैं। व्हाट इज दिस विशेष सर्कल? विशेष सर्कल की शुरुआत होती है हमारे में जो कमियां हैं, डेफिशिएंसीज है। हम वहां तक नहीं सोचते हैं कि मेरा हर काम परफेक्ट 100% एवरी टाइम ऑल द टाइम, इसलिए थोड़ा सा रिवर्क का गुंजाइश होता है, उसमें हमारे रिसोर्सेस ड्रेन हो जाते हैं। दैट लीड्स टू ओवरलोड, दैट लीड्स टू स्ट्रेस, वी डिमांड मोर रिसोर्सेस, those cannot be given, so that leads to failure, that leads to fear. Then what human being will do? It will start blaming. हम ब्लेम करेंगे किसको? हम बॉस को ब्लेम करेंगे, कंपनी को ब्लेम करेंगे, सबऑर्डिनेट को ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, कुछ नहीं तो भगवान को ब्लेम करेंगे, एक कोविड क्यों भेजा। सो उससे क्या होता है? डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और हम लोग फिर उसमें वेरी नेचुरल टेंडेंसी बफर बनाने का। यदि कोई काम करने के लिए हमें 2 घंटे की जरूरत है तो हम बॉस को क्या बोलेंगे? सर 4 घंटा। यदि कोई कस्टमर को जवाब देने के लिए 1 दिन काफी है, हम बोलेंगे सर 3 दिन के बाद। होता क्या है इससे हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। एफिशिएंसी जब डाउन होगी तो व्हाट विल हैपन? वी विल बिकम नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव बनने से क्या होगा? परफॉर्मेंस पुअर होगी। More pushing will be needed, more hard work will be needed. What will happen because of that? We will get into the same routine efficiencies, and ये चलता ही रहे। This vicious circle will keep on happening. हमें vicious circle से तोड़ना है, इसको previous normal को बंद करना है। मैं बताने जा रहा हूं, we'll be discussing 3-layer strategic initiatives. ये 3-layer strategic initiatives की हम बात करेंगे। पोस्ट लॉकडाउन की इकोनॉमी का इम्पैक्ट क्या है? डिस्टर्ब कंपनी ऑपरेशन, डिस्टर्ब सप्लाई चेन। लेकिन ये दोनों ठीक हो रही है, ठीक हो जाएगी।
डिस्टर्ब मार्केट डिमांड, यस, इसको थोड़ा टाइम लगने वाला है। अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग वक्त लगेगा। कस्टमर विल स्टार्ट प्रिफरिंग ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस एंड सो द डिफरेंट परफॉर्मेंस। लेकिन सबका बिजनेस परफॉर्मेंस डाउन होने वाला है। जिनकी मसल पावर, फाइनेंशियल मसल पावर अच्छी है, जो जाइंट्स है, वो सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जिनकी ताकत नहीं है, जो परफॉर्मिंग यूनिट नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम है, ट्रबल एक्शन की जा सकती है। नेशन वाइड की मैं 3 लेयर की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात, एट गवर्नमेंट लेवल, एट नेशनल लेवल, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूं। उन्हें डिटर्मिनेशन करने की जरूरत है, नारे नहीं, पॉलिसीज। उन्हें पॉलिसीज लानी पड़ेगी हमारे देश के लिए। व्हाट आर दोस प्रायोरिटी एरियाज? जैसे कि बात हो रही है, हमें हेल्थ केयर बढ़ाने की जरूरत है, बहुत मजबूत करने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम, बहुत उसमें काम करने की जरूरत है। माइग्रेंट वर्कर्स, इसमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सब पॉलिसीज गवर्नमेंट लेवल पर एट द टॉप होनी चाहिए। ये पॉलिसीज डिसाइड करने के लिए अलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी पुट इन टुगेदर, सोशल एलिमेंट्स हैव टू ब्रिंग इन, नॉलेज लीडर्स हैव टू बी जॉइनिंग, इंडस्ट्री लीडर्स हैव टू जॉइन, और ये रिवॉल्यूशन हो सकता है। 25%, 30% जीडीपी का पोर्शन है, इसको बढ़ाना है। कैसे करेंगे? ये जब पॉलिसी बनेगी, पूरा जोर लगेगा, तो ये हो सकेगा। बट ये तो मैंने पहली बात की, ये गवर्नमेंट, इसी के ऊपर में हम निर्भर रहेंगे, ये तो लोग करेंगे ही, मुझे विश्वास है ये होगा। लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ बैठे रहेंगे? नहीं। हमारे पास, हमारे कंपनी के तौर पर, हमारे कंपनी के लेवल पर ड्राइव लेना पड़ेगा। क्या इनोवेशन कर सकते हैं, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज है, और हम कैसे कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं, ये नारा होगा। कॉम्पिटिटिव बनने का ये जरूरत है, तभी तो हम लोकल से ग्लोबल बन पाएंगे। ये हो गई सेकंड लेयर बात, इंडस्ट्री लेवल की। तीसरी बात, तीसरा लेयर बहुत इंपॉर्टेंट, मास मूवमेंट एट इंडिविजुअल। एट इंडिविजुअल लेवल वी हैव टू जॉइन हैंड्स, स्किल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और हार्डशिप, दीज आर द 3। ये बहुत जरूरी है भाइयों। ये मैं आज जरूर हिंदी में बात कर रहा हूं, इसका रीजन है कि ये मेरी बात उन शॉप फ्लोर तक चाहिए। याद कीजिए, जब कोविड का फाइट चल रहा था, हम 60 दिन हम घर में बैठे थे, लेकिन वो डॉक्टर्स, वो नर्सिंग स्टाफ, वो हॉस्पिटल्स, वो सुरक्षा व्यवस्था, वो पुलिस, ये सब लोग अपने काम कर रहे थे। क्या था उनमें? स्किल, कोविड करने का स्किल, उनके पास डिसिप्लिन, और उनके पास हार्डशिप। ये तीनों उन्होंने साथ जोर लगाया। और इतने बड़े कंट्री के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फाइट करने के लिए उन्होंने पूरा सब कुछ नौछावर कर दिया। यही होता है हमारे बाउंड्री के ऊपर में। जब देश की सुरक्षा का बात आता है, तो हर सैनिक यही 3 चीजें लगाता है। मेरे दोस्तों, आज ये टाइम आया है कि 60 दिन के बाद हम जब घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अभी हमारा टाइम है, हमें बताना है हम भी कुछ कम नहीं। जिस प्रकार हम उनके लिए तालियां बजाते हैं, एक ऐसा वक्त लाओ कि लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे। ये मीडिया वाले लोग हर कंपनी में जाकर उनकी सक्सेस स्टोरी टीवी पर बताना चाहिए। हमें दिखना चाहिए ये बदलाव। ये वक्त है, ये टाइम आया है हमारे देशभक्ति जताने का, हमारी राष्ट्रभक्ति बताने का। तो स्किल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और हार्डशिप, ये तीनों की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे की ओर लेके चलता हूं। ये जो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर की बात जो मैंने की, उसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला, फोकस स्किल डेवलपमेंट,
improve productivity at all levels. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली शॉप फ्लोर के ऊपर में प्रोडक्टिविटी होती है ना, स्टार्ट फ्रॉम टॉप बॉस. टॉप बॉस किस तरीके से वक्त देता है, क्या कौन से काम करता है, उनके लेवल का काम वहां हो रहा है ना, दो स्टेप नीचे का नहीं. 8 घंटा बिजी, लेकिन काम 2-3 लेयर नीचे वाला नहीं चलेगा. सो टॉप से लेके बॉटम तक स्किल डेवलपमेंट, इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़ी ही देर में. प्रोडक्टिविटी एट ऑल लेवल्स हैज टू गो अप. वी आर टू बी कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव बनना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के लिए काम रहेगा. कब होगा, कैसे होगा? टारगेट प्रोसेस इंप्रूवमेंट. हर कंपनी में प्रोसेसेस होती है. ये प्रोसेसेस खाली शॉप फ्लोर पे नहीं होती, ऑफिसेस में होती है, कार्यालयों में होती है, बैंक में होती है, एवरीवेयर. इवन अ टीचर, इवन अ प्रोफेसर, इन एन एग्जामिनर, एवरीबडी इन द लॉजिस्टिक, इन वेयर हाउस, एवरीवेयर प्रोसेसेस होती है. उसमें कमियां हैं, उस कमियां को दूर करना, इम्प्रूव करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहेगा. एनकरेज डिस्कवरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज. नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, सबके पास आने वाली है, लेकिन वो रुकेगी नहीं, उसको पकड़ना पड़ेगा. आप नहीं पकड़ोगे चले जाएगी. तो ये 4 चीजें के ऊपर हमें काम करना है. फोकस स्किल डेवलपमेंट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एट ऑल लेवल्स, टारगेट प्रोसेस इंप्रूवमेंट, और 4 एनकरेज डिस्कवरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज. तभी हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे और फिर लोकल से ग्लोबल होगा, फिर इकोनॉमी डाउनटर्न नहीं रहेगा, आगे बढ़ेंगे. पहली बात मैं करने जा रहा हूँ स्किल डेवलपमेंट की. बहुत बार बोला जाता है, हम जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ तो मुझे बोला जाता है, व्हाट्स न्यू इन दिस सर, वी ऑल नो अबाउट इट. थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है हमें कि हमें क्या पता है. कुछ हमें मैसेजेस मिल जाते हैं और हम समझते हैं कि हमें पता चल गया, हमें मालूम है. अरे कुछ नहीं मालूम, वो गलत है. अनवेरिफाइड मैसेजेस नॉट टू बी कंसिडर्ड. फिर क्या, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज to be considered as knowledge? No. Factual information, verified data is essential, but not at all sufficient. एक एग्जाम्पल देंगे. एक स्टोर का आदमी है. He has got all the data about all the parts and its stock. This is data, but that is not useful. थोड़ा उसका आगे की लेवल की बात करेंगे जिसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है. व्हाट इज इंफॉर्मेशन? मीनिंगफुल डेटा. उसमें से मीनिंग निकलना चाहिए. सर ये पार्ट का स्टॉक ज्यादा हो गया, सर ये पार्ट का स्टॉक कम हो गया, सर इसका कंजम्पशन ज्यादा है, सर पिछले साल हमें इतना लगता था अभी इतना आ रहा है. ये कंपैरिजन. जब ये इंफॉर्मेशन वो स्टोर ऑफिसर अपने बॉस को देगा, तब समझने का कि उसने थोड़ा बहुत कुछ काम किया. खाली डेटा लेकर यदि मेल पर भेज देता है तो वो अपने काम में जस्टिस नहीं कर रहा है. हमें आगे की ओर जाना है, कॉम्पिटिटिव बनना है, तो केवल ये स्तर पर रहकर नहीं चलेगा. आगे देखते हैं और क्या चाहिए. नॉलेज. क्या होता है नॉलेज? जब ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम किसी टारगेट की ओर जाने के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलने के लिए, डिजायर्ड आउटपुट मिलने के लिए चेंजेस करते हैं, कोशिश करते हैं, तब बनता है वो नॉलेज. तब समझना हम वो काम के लिए फिट हो गए. तब तक हम फिट नहीं थे. यदि हम खाली डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, हम फिट नहीं हैं. यदि हम खाली इंफॉर्मेशन इधर से उधर पास ऑन कर रहे हैं, तो हम वो काम में फिट नहीं हैं. हमें नॉलेज बढ़ाना है. नॉलेज मतलब एक्सपेरिमेंट, डूइंग, गेटिंग रिजल्ट्स. लेकिन ये भी कॉम्पिटिटिव बनने के लिए पूरा सफिशिएंट नहीं है. ये 95% तक लेके जाएगा, 90 तक लेके जाएगा. आज जरूरत है 99.99% की. तो कैसे करें? उसके लिए जरूरत है अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम की. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. सपोज यू आर सिटिंग इन अ कार. You have got gear, you have got steering wheel, you have got brake pedal, you have got accelerator. So many variables are there, and your thought process that you want to park your car in this manner at this location, not today,
every time, all the time. Then you apply various parameters, control together and get the result. This is understanding. Tuning all variables in the right direction to get result every time, all the time. This is understanding. थोड़ा विजडम की बात आगे की है। जब हमें बहुत सारे रास्ते मालूम है जो रिजल्ट देते हैं, लेकिन हमारे कंपनी के लिए, हमारे देश के लिए कौन सा राइट है, कब राइट है, ये जब समझ जाता है और हम जब दूसरों को एडवाइस देने लायक बन जाते हैं कि आपकी कंडीशन ऐसी है इसलिए आपको ये रास्ता ठीक है और हमारे ये कंडीशंस के लिए ये रास्ता ठीक है, ये जब एडवाइस हम कर सकते हैं तो हम विजडम की बात करते हैं। चलो छोड़ दो विजडम की, लेकिन कम से कम कंपनी में का हर आदमी अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जब जाएगा तो अपनी कंपनी देश में नहीं, ग्लोबली आई एम सेइंग नंबर लगा सकती है। सो यदि हमें कॉम्पिटिटिव बनना है तो इस लेवल की बात करनी है। हमारी गैप क्या है, मेरा आज का नॉलेज क्या है, मेरी आज मैं जो काम करता हूँ क्या इंफॉर्मेशन पास ऑन के लिए काम करता हूँ या मैं नॉलेज लेवल की बात करता हूँ या मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है। वो गैप को ढूंढो और काम करो। एम तो एक ही होना चाहिए, डिफेक्ट फ्री इनपुट लाना और आउटपुट देना, डिले फ्री इनपुट लाना, डिले फ्री आउटपुट देना, इंजरी फ्री काम करना, ब्रेकडाउन फ्री मशीन चलाना, वेस्ट फ्री ऑपरेशन करना, वेरिएशन फ्री ऑपरेशंस करना, ओवरबर्डन फ्री ऑपरेशन करना। बस यही तो काम है, तभी तो कॉम्पिटिटिव बन पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर कंपनी सोचती है बढ़ने की, वो तभी होता है जब वैल्यू टू द कस्टमर प्रोवाइड किया जाता है, व्हेन वी आर एबल टू प्रोवाइड वैल्यू टू शेयर होल्डर एंड व्हेन वी आर एबल टू प्रोवाइड वैल्यू टू एम्प्लॉइज। लेकिन ये सब तभी होता है जब कंपनी में पैसा बनेगा, व्हेन वी विल बी एबल टू जनरेट मनी। जब मनी होगा तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारा पैसा वेस्ट जा रहा है तो हम वो विशेष सर्कल में फंस जाएंगे। यदि हम काम परफेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे काम में डेफिशिएंसीज आ रही है, पैसा डाउन हो रहा है, तो फिर देन विशेष सर्कल। सो ये बात को समझ के हम कैसे आगे जाना चाहिए। एक बात ध्यान से सुनना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट कटिंग। ये कॉस्ट कटिंग की बात नहीं है, चलो आज कैंटीन का बजट थोड़ा कम करेंगे, चलो न्यूज़पेपर बंद करेंगे, ना ना ना। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग which is to be saved, something which is not going to customer, something which is not going to even our supplier, something which is not going to employees, that is to be saved. We have to get that, and that is what is this program for. क्या हमारी फैक्ट्रीज फ्री ऑफ वेस्ट है? सेशन इंटरैक्टिव is Amol. Hello. चलिए देखते हैं, कंपनीज आर स्टिल लूजिंग मनी। इफ यू फील सो then take it. If you feel that no, employees are vigilant, companies are vigilant, they don't lose money anymore now, then the second option. Please give your opinion. I hope you are able to see the screen. Please give your opinion. Amol, can we close the poll and see the result?
Companies are losing still 86% people, and 4 people say no, we have become now competitive. Very good. We have to change this ulta. We have to bring 86%, okay, that we are not, we should be able to put a board on the gate that this company does not lose money. चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सुधारना है तो कैसे? हम जब भी कोई विजिट करते हैं कंपनी, ये हमें ऐसा चित्र दिखता है। कहाँ है वेस्ट इस कंपनी में? नहीं दिखाई देता है। जब कोई विजिटर आता है तो बहुत अच्छा साफ सुथरा फैक्ट्री दिखता है, लेकिन क्या ये सही रहता है? कोरोना बेर आंखों से दिखता है? नहीं, उसको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। हमारे पास वो माइक्रोस्कोप होने जाए तो जरूरी है। We need different microscope to see companies waste. ये ऐसे डार्क विजन वाले चश्मे वाले लोग, ये इनको अपॉर्चुनिटी कभी दिखती ही नहीं, वेस्ट दिखता ही नहीं। जब भी वो कंपनी में वेस्ट होता है, गोल्डन विजन वाले लोग, इनको दिखता है वेस्ट, इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कैसे करें, कहाँ जाए। मल्टी विजन वाले लोग, बहुत सारा ज्ञान होता है इनके पास, इन्हें सब पता है, इन्हें वेस्ट भी दिखता है और इन्हें पता भी है कि कैसे उसको रिमूव करना है, लेकिन उनके पास टैक्ट नहीं है कैसे करके ले, उनके पास एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है टू गो टू द फ्लोर and grab that opportunity, get the system work for the company. हमें जरूरत है, clearly we should be able to see, discover the waste. We should be able to escalate in the company, to whom to go, for what. We have to have a skill to plug that waste, act, track the result, and then we will be able to plug this waste. We can coach you and your team to learn this skill, practice this, and get into the company. चलिए हम देखते हैं कि रियलिटी कंपनीज में कैसे काम होता है। जो मैंने फैक्ट्री बताई, उस फैक्ट्री को, इस नज़र को यदि हम डेवलप करते हैं तो क्या दिखता है। हमें कुछ कंपनी दिखेंगी जहां मिक्सअप होता है, अलग अलग क्वालिटी का मटेरियल कंपनी ने अरेंजमेंट की है कि अलग अलग उसमें रखा जाए, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गई, सिस्टम कम पड़ गई, डिसिप्लिन कम पड़ गया, ध्यान कम हो गया और मटेरियल मिक्स हो रहा है। मटेरियल स्पिल ओवर, अच्छा खासा महंगा मटेरियल गिर जाता है, मिक्स होता है, मिस्टेक्स होती है, अच्छा खासा बनाया हुआ पूरा प्रोडक्ट, पूरी ऑर्डर वेस्ट हो गई, प्रोजेक्ट रिजेक्शन होता है, मटेरियल रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन देखिए लीकेजेस का, फैक्ट्रीज में ऐसी 12 मशीन कंटिन्यूअस बनाती है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनने की अपेक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, लेकिन उस कंपनी में जिस तरीके से मशीन का देखभाल है, आप देख सकते हो, कंटिन्यूअसली एमिटिंग होता क्या है उससे, कंटेमिनेशन। जो प्रोडक्ट बना, टनों से प्रोडक्ट बनता है और वो डेरिवेटेड बैचेस के नाम पर ये ऐसा रखा जाता है, ये पूरा स्टॉक में बताया जाता है। सो बैलेंस शीट कैन नॉट एग्जिबिट द वेस्ट। ये स्टॉक देखिए, ये वेयर हाउस नहीं है, ये स्टोर नहीं है, ये शॉप फ्लोर है। स्टोर पहले भर गया, फिर एक्स्ट्रा रैक्स लाकर शॉप में रखे गए, वो रैक्स भी फुल हो गए तो अभी जमीन पर रखना चालू है। बाजू वाला फैक्ट्री देखो क्या दिख रहा है, आखिरी तक एमआई खड़ा दिख रहा हूँ यहाँ, नीली पैंट, क्या दिख रहा है, मुझे तो समझ नहीं पड़ रहा था कि मैं कहाँ से अंदर घुसूं। ये एक्सेस WIP, they all short-lasted castings are waiting now for machining. पता नहीं 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगते हैं। ये छोटा सा फैक्ट्री है, इसमें जगह नहीं है और उस जगह में से पैकिंग मटेरियल स्टोरेज के लिए जा रहा है, मशीन रखने के लिए जगह नहीं है। ये प्लांट देखो, मैं इसे प्लांट कहूँ कि और क्या, आप देख सकते हो 3600 स्क्वायर फीट वाले बेस हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया में। ये बैच प्रोडक्शन देखिए, कुछ लोगों के दिमाग में बैठा रहता है कि बैच प्रोडक्शन ही हमें एफिशिएंसी देगा, फिर वो जलने को जगह नहीं रहती है, डैमेजेस होते हैं, वेस्ट होता है।
ये और एग्जांपल्स है बैच प्रोडक्शन के। ये देखिए और एग्जाम्पल, FG रहो, WIP रहो, ऑल वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। कहीं BOM में प्रॉब्लम, मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कैसे वापिस करे, सिस्टम नहीं है। FG स्टोर ऐसे इस कंपनी के 9 वेज है, 9, इतना बड़ा वेयर हाउस और कम पड़ता है, और फिर भी कहते हैं कि मटेरियल पूरा मिलता नहीं है, समथिंग रॉन्ग। सो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए, ये जूने एग्जाम्पल है, 3 साल पहले के एग्जाम्पल है। कंपनी दिखने में ऐसी है, लेकिन इस कंपनी के अंदर में अलग 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 जगह से हमें जो मैंने पिक्चर्स बताए वैसे मौके मिलेंगे। पैसे से वेस्ट हो रहा है, उसे वेस्ट को पकड़ने में। मैं जानना चाहता हूं अभी कि ये सब पिक्चर्स देखने के बाद में आपको क्या लग रहा है? दिस वेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड और दिस वेस्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कंपनी ऐसे ही चलती रहती है, ऐसे ही चलने वाली है, ऐसे ही चलनी चाहिए। प्लीज गिव योर ओपिनियन। वेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड, फर्स्ट ऑप्शन, और वेस्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी सवाल हैं आप चैट बॉक्स में प्लीज डालना चालू कीजिए। एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोस क्वेश्चंस। मुझे मालूम है लास्ट सेमिनार में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा, जहां हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। वेस्ट कैन बी कंट्रोल, वाह, वेरी नाइस, कॉम्प्लीमेंट्स टू यू ऑल। यही विश्वास चाहिए। यदि आप इसमें बिलीव करते हैं तो बस वो नजदीक है जब हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे। ये सोच यदि है तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। विल क्लोज द पोल एंड गो फर्दर। जो फोटोज मैंने बताए, पिक्चर्स बताए, वो जैसे मैंने बताया 2 या 3 साल पहले वाले हैं। 8 कस्टमर्स थे, उसमें से 6 कस्टमर्स, 6 ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टेलिंग यू, understood the importance of competitiveness and made significant improvements well in time. These customers will not like to recollect their earlier memories. They must have removed from their album. So they would not like this again. We appreciate their efforts, their commitment. My salute to them. अभी और एक थोड़ा सा देखेंगे, ये कोविड-19 की जो फाइट हो गई और हो रही है, इसमें से हम क्या सीख सकते हैं इकोनॉमी 20 की फाइट देने के लिए? प्रोसेस इज द सेम, प्रोसेस अलग नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये नया था तो हमें अवेयरनेस और एजुकेशन की जरूरत पड़ी, नॉलेज की जरूरत पड़ी। कौन से लेवल पर ये 15-20 दिन के अंदर में लाया गया पूरे देश। और यदि सिम्टम दिखाई देते हैं तो हमने क्या करना है, सबको पता हो गया था। विजिलेंस फॉर कंप्लायंस, देखिए खाली बोलकर नहीं हो गया कि चलो भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ना ना ना। एवरीबडी बिकेम विजिलेंट, हर घरों में। और उसमें जब नहीं हो रहा था तब एनफोर्समेंट लाया गया, पुलिस फोर्स कम पड़ रही है, मिलिट्री छोड़ा नहीं। सो ये जो एनफोर्समेंट है तभी उसके रिजल्ट आते हैं। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब ये सब साथ में जब होता है तो एकजुट होके एक्शन प्लान बनता है, एग्जीक्यूट होता है, रिजल्ट्स आते हैं। इकोनॉमी 20 की फाइट ऐसी ही चाहिए। हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमें हमारे स्किल गैप की जरूरत मालूम होने की जरूरत है। उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, कंपनी के हर आदमी को पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब यदि मेरे को 100%, 99.99% की एक्यूरेसी लानी है तो मुझे पक्का पता होना चाहिए, उसके ऊपर विजिलेंस होना चाहिए।
यदि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है तो मुझे वो सिम्टम दिखने चाहिए। मैं सिम्टम दिखता है तो मैं कहाँ जाना चाहिए, किस प्रकार की एक्शन मैंने लेनी चाहिए, किसको मिलना चाहिए, मुझे कौन हेल्प करेगा, पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ जरूरत है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो करना ही पड़ेगा, ये सब करेंगे। ये जब डैशबोर्ड दिखेगा तब हम इकोनॉमी 20 को भी फाइट करेंगे। देखिए, ये बहुत सिंपल सा लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ ये सिंपल ही है। मैं आपको एक केस स्टडी बताने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ, और आपको समझ जाएगा कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। सो सब एक्शन, remember this COVID fight actions, everybody is aware, just copy paste. इंडस्ट्री के सिम्टम कैसे रहते हैं? ये सिम्टम है, हमारे यहाँ प्रोसेसेस चलती है, डिजाइन प्रोसेस है, एस्टिमेट प्रोसेस है, वहां से लेके शॉप फ्लोर के प्रोसेस तक, लॉजिस्टिक के प्रोसेस तक, पैकिंग, डिस्पैचेस, सब प्रोसेसेस है। क्या ये प्रोसेस कैपेबिलिटी ऐसी है जो 100%, जो 99.99% रिजल्ट देती है? इसका इंडिकेटर है, हर प्रोसेस ओनर जानता है, लीड टाइम एंड लीड टाइम एफिशिएंसी। ये सिंपल सा टर्म है, सब बोलते हैं, मुझे मालूम है, जब हम एक्चुअली देखते हैं कंपनी में तो ये मालूम नहीं होता है। जनरल आइडिया होती है, जनरल आइडिया से नहीं चलेगा। हर प्रोसेस का लीड टाइम मालूम है, लीड टाइम एफिशिएंसी निकाली जाती है। मटेरियल एफिशिएंसी, मटेरियल एफिशिएंसी मतलब यील्ड क्या है? अरे भाई 50% 60% मटेरियल कॉस्ट है, उसका यील्ड क्या आ रहा है, स्क्रैप रेट कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या कितना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है। बहुत सारे कंपनी बोलते हैं हाँ ऐसा थ्रूपुट, कैश फ्लो, स्पेस एफिशिएंसी बहुत महंगी होती है जगह। लेबर प्रोडक्टिविटी, अगेन रिमाइंड, लेबर प्रोडक्टिविटी इज नॉट ऑन द फ्लोर, लेबर प्रोडक्टिविटी इज ऑन द फ्लोर, एवरी फ्लोर, ऑफिस फ्लोर, सीईओ के केबिन में, सब जगह ये लेबर प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी खाली इंडस्ट्री की में नहीं, ये इंडस्ट्री के बाहर में भी, लॉजिस्टिक में भी, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी, ये हॉस्पिटल्स में भी, ये बैंक में भी, ये हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, सब जगह प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं, मैं भी बहुत सारे जगह घुमा हूँ, आप भी घूमे होंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी 50% भी नहीं है। तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक जो केस लेने जा रहा हूं उसमें हमने देखा कि ये लीड टाइम को जब हमने गिनना चालू किया तो पता चला अरे यहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट की स्कोप है। कौन से फैक्टर्स रिलेटेड है? जब हमने जाना, जैसे हम कोरोना की टेस्ट लेते हैं वैसी टेस्ट है, WIP का क्या रेशो है, ITR का कितना महत्व है, कैश फ्लो कैसे चल रहा है, और स्पेस एफिशिएंसी कैसी है। ये सब को लेके एक केस स्टडी हम देखेंगे बहुत ही क्षणों में। देखिए कि क्या बदलाव आ सकता है। उसके पहले जाऊं, वो केस स्टडी डिटेल में चर्चा करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी सवाल हैं वो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए। मिस्टर पीयूष विल collect all those questions and we will handle that session after this webinar, immediately after the webinar. आपके इस सेशन के बारे में जो भी फीडबैक है मेरे लिए खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपके फीडबैक जरूर टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। तो चलिए ये केस स्टडी की तरफ। एक कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है, एक अच्छा इंजीनियर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाती हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। 240 करोड़ का टर्नओवर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो जब हमने केस को हैंडल किया, 20 करोड़ अराउंड मंथली, 18 to 24 वीक्स उनका लीड टाइम, ऑर्डर आया,
से लेके डिस्पैच तक। WIP 36 करोड़, स्टोर्स इन्वेंट्री कॉस्ट 24 करोड़, FG 2 crore, total inventory 62 crore. ITR was 3.8. This company was not having money problem because they have got good enough money margins. But when we saw ITR and when I compared with comparable companies of that type of industry, I found that there is something wrong. There is a need for improvement. I could discuss with the MD. And for my luck, he was able to quickly understand, and immediately we started working. Within 12 months of detailed work, what has happened? Turnover 280 crore from the same facility, 24 crore monthly, 8 weeks lead time from 18 weeks. Can you imagine the difference? 36 crore WIP came down to 24 crore. Normally हम लोग सोचते हैं धंधा बढ़ रहा है तो WIP बढ़ेगी. ना ना ना, जरूरत नहीं है. Stores inventory also little bit came down, but we didn't much work on the stores. FG 1 crore and total inventory came down to 45 crore from 62 crore. So 40% improvement. Inventory turnover ratio improved from 3.8 to 6.2. ये 6.2 भी कम है because as per my understanding it should have gone to 8. थोड़ा stores में काम करेंगे तो ये बन सकता है. When it is 8, then you are in a first 5 in the world. First 5 in the world. It can happen. So you can become world class. It is not only for the namesake. In this manner, we can improve different processes. हमने क्या किया इसमें? बहुत ज़्यादा नहीं. Let us see. इससे impact पहले देख लेंगे कि ये जब improvement हमें WIP का दिख रहा था या lead time का दिख रहा था, in terms of पैसा, in terms of money, what is the impact? Working capital reduced by 16 crore. It means almost 1.5 crore का interest. Direct adding 1.5 crore to your profit. 20% free space. All those damages which were happening because of short of space. एक फोटो है, जब मैंने फोटो बताए थे उसमें जगह नहीं है रखने के लिए. इतने delicate machined, precise machine components, very delicate instruments, getting damaged. That has come down from 12% to 2%. On time delivery got improved from 60% to 88%. ये तो immediate effect मिलता है. जैसे WIP कम होगी आपको on time delivery improvement मिलना ही मिलना है. यदि आपका on time delivery हो नहीं रहा है, यदि मार्केट में आपका lead time ज़्यादा है, मार्केट डिमांड बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत जल्दी चाहती है, तो जरूर समझना कि हमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. हमारे यहाँ कुछ टाइम वेस्ट होता है, उसे प्लग करने की जरूरत है और ऐसे ही बेनिफिट आप ला सकते हो. सो इन अ ईयर यू कैन सेव 200 lakhs और मोर इन दिस टाइप ऑफ कंपनी. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या किया, कैसे किया? बहुत सारे स्टेप्स हैं. मैं थोड़ा जस्ट आपको एक झलक बताने के लिए बता रहा हूँ कि पहले तो हमने असेसमेंट किया कंपनी का, उसमें कौन से कंस्ट्रेनिंग प्रोसेसेस थी वो जान लिया. कम्युनिकेशन फ्लो कहाँ ब्रेक होता है देखा. प्लानिंग मेथड में क्या गलतियाँ देखी. ये WIP क्यों बढ़ती है उसका समझ लिया. प्रोसेस कैपेबिलिटी में कहाँ पड़ रहे हैं कम, कौन सी प्रोसेस वीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहाँ गड़बड़ है और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ है. ये सब जान लेने के बाद में हमने एक प्रोग्राम बनाया. उस प्रोग्राम में बहुत सारे लीन टूल्स कहाँ कहाँ जरूरत है वहाँ यूज किए. उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, लोगों की टीम्स बनाई, क्रॉस फंक्शनल टीम्स पे ट्रेनिंग देके उनके साथ हमने प्रोजेक्ट्स लिए और प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ. टारगेट्स डिसाइडेड थे, उस टारगेट्स को लेकर हमने काम किया और आप रिजल्ट्स देख पा रहे हैं. डेली मॉनिटरिंग आज उस कंपनी का होता है. हर फैक्टर जो मैंने 7 सिम्टम बताए उनके 7 फैक्टर्स
डेली मॉनिटरिंग है, इंडिकेटर्स है, सबको पता चलता है क्या हो रहा है। आप भी अपनी कंपनी के लिए असेसमेंट कीजिए। सिंपल है, एक टेम्पलेट बता रहा हूं कि वो जो 7 मैंने इंडिकेटर्स बताए, सिम्टम्स बताए, जैसे कि प्रोसेस कैपेबिलिटी, एक जो क्रिटिकल है, जहां वेस्ट हो रही है, जहां रिजेक्शन होता है, जहां डिले होती है, वो प्रोसेस को पकड़ो और चेक करो कि उसकी क्या एक्यूरेसी है, क्या दिक्कत है, लीड टाइम कैसा है, लीड टाइम एफिशिएंसी कैसी है, मटेरियल यील्ड कैसा है, स्क्रैप रेट, WIP, ITR, थ्रूपुट, कैश फ्लो, स्पेस एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इन सब फैक्टर को चेक करो कि क्या अपने कंपनी में स्टैंडर्ड डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। इन हर एक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन अवेलेबल है, सबको एक ही पता है कि ऐसे ही गिना जाता है। क्या उसका वीकली ट्रैकिंग होता है? टिक करो। ट्रेनिंग सबको, कंसर्न लोगों को वो ट्रेनिंग दिया गया है कि जो अपने नॉलेज लेवल तक, मतलब डिजायर्ड आउटपुट लाने तक उसमें काम कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग उनको अवेलेबल किया गया है। कुछ नॉर्मल जो प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है, ITR को इम्प्रूव करना है, इसके कुछ नॉर्म्स, टारगेट्स डिसाइडेड है। उनको क्रॉस फंक्शनल टीम बनाकर वो टारगेट दिए गए हैं। वो टारगेट्स को लेके कुछ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स टाइम बाउंड लिए गए हैं और उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर में वो टीम काम कर रही है। रिजल्ट्स इनकरेजिंग आ रहे हैं। ठीक कीजिए। आपको ये जो मैट्रिक्स बताया है, ये सिंपल सा शीट आपको बताएगी कि आपके कंपनी की हेल्थ कैसी है, कहाँ कम है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी स्टेप से शुरू करना है, आपको सब पता हो जाएगा। सो कंक्लूड करने के पहले ये 4 चीजें जो हमने बताई, पहली वाली फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, दूसरा improve productivity at all levels, तीसरा टारगेट प्रोसेस इंप्रूवमेंट, और चौथा एनकरेज डिस्कवरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। हम बन जाएंगे फिर कॉम्पिटिटिव। वो सर्कल टूट जाएगा, दुष्ट चक्र गायब हो जाएगा। हम नया नॉर्मल लाएंगे। नया नॉर्मल की बात हो रही है, नया नॉर्मल हम हमारे इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए लेके आएंगे। ये जो सेशन रहा, ये खाली इंफॉर्मेशन था। ये आपका स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम 1 घंटे के अंदर में नहीं होता है। स्किल डेवलप यदि करना है तो उसमें बहुत टाइम देने की जरूरत है। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उतनी में skill development programs, we can handhold you till implementation। जब तक कि आप नहीं होते कामयाब, आपको कामयाब करना, यही हमारी कामयाबी होगी। दोस्तों, हमें नया नॉर्मल लाना है, हमें ये हैप्पीनेस लाना है। मेरे साथ जुड़िए, कॉल कीजिए और आगे बढ़िए। ये वर्जन आपके साथ है। पीयूष, I request you to take over for the question and answer session। और पहले सब लोगों को मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 50 मिनटों में आज हमने समझा, और जैसा कि गांधी सर ने शुरुआत में कहा था कि हम ये सेशन हिंदी में कर रहे हैं और हम समझेंगे। तो मैं आगे भी एक जो वार्तालाप है हमारा, जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, वो हिंदी में कोशिश करूंगा करें, और जो क्वेश्चंस इंग्लिश में है वो करें हम। गांधी सर के लिए फीडबैक आना शुरू हो गया है। अंकुर जी का कहना है गुड लर्निंग। नीरज जी का कहना है थैंक यू सर फॉर द ग्रेट सेशन। अल इमरान, सो फार मेनी क्वेश्चंस हैव कम अप, आई कैन सी। मेरे पास अभी करीब 7-8 क्वेश्चन आ गए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम एक एक क्वेश्चन लेंगे। अभी 11 बजकर समझ लीजिए 58 मिनट में, यानी 1 मिनट कम है 12 बजने में।
सो अगले 15 मिनट में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने सीट पे बैठे रहें, और क्योंकि बहुत सवाल हैं और इन सवालों से जो हमें गांधी सर से आज जानने को मिला, सीखने को मिला है, उससे जुड़े जो सवाल आए हैं वो आप जानेंगे तो आपको और मजा आएगा, आप और नई चीजें सीखेंगे। हो सकता है कि वो सवाल आपके मन में भी हो, आपने ना लिखे हो, लेकिन वो जरूर आंसर यहाँ किए जाएंगे, कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो सबसे पहले इस वेबिनार को मैं समराइज कर दूं, 2 मिनट में समराइज कर दूं इस समय। तो हमें शुरुआत में सर ने कहा था कि वी विल गेट टू नो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट। सो मुझे पूरा अंदाजा है, पूरा पता है कि आप ये समझ गए होंगे कि आपको कहाँ शुरू करना है, और अगर नहीं समझे हैं तो ये सवाल का जवाब जरूर आपको मिल गया होगा कि हु शुड स्टार्ट। तो हु शुड स्टार्ट में सबको बदलाव करके दिखाना है और बताना भी है, ताकि हमारी स्टोरी क्या है, ताकि हम और लोगों से सीख सकें और अपनी जानकारी दूसरों को दे सकें, लोग हमसे सीख सकें, ये बहुत जरूरी है। विद फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलप करना है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाना है, हमें अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है, एम करना है ताकि हम डिफेक्ट फ्री बन सकें, हम डिले फ्री बन सकें, ब्रेकडाउन फ्री बन सकें, इंक्वायरी फ्री बन सकें, सॉरी इंजुरी फ्री बन सके हम, नॉट इंक्वायरी फ्री। इंक्वायरी तो जरूरी है इस समय में, कस्टमर ऑर्डर सभी वेट कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे होंगे। किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करें, एम्प्लॉइज के लिए वैल्यू क्रिएट करें, और हम कस्टमर्स के लिए वैल्यू प्रोड्यूस करें, और इस कुचक्र यानी विश्व साइकिल से बाहर निकलें, ये बहुत जरूरी है। और हमने पाया कि हमारे सर्वे में, जो छोटा सा सर्वे किया, छोटा सा पोल किया, उसमें हमने पाया कि 86% लोग ये कहते हैं कि कंपनीज आर लूजिंग मनी। सो आप में से 86% लोगों ने कहा वी आर लूजिंग मनी। सो you know where to develop your skills and where to focus. Now we have to develop that vision, we have to get that eyes, वो चश्मे जो आज हमने 3 तरह के चश्मे देखे जो हमने पहन रखे हैं डेली, वो उतारने की बारी आ गई है। नए चश्मे पहनने की जरूरत है, नए नजरिए से देखना है हमें। क्या देखना है? टू डिस्कवर द वेस्ट। हमने न्यूमरस एग्जांपल्स देखे, न्यूमरस स्लाइड्स देखी, अलग अलग कंपनियों के एग्जांपल देखे कि किस तरह से हम WIP में वेस्ट है हमारे पास, RM में वेस्ट है, फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं शॉप फ्लोर पे, इन्वेंट्री का वेस्ट है यानी कि डिफेक्ट का वेस्ट है, वेटिंग का वेस्ट है, हम डिसीजंस का इंतजार कर रहे हैं, इसका क्या करें, प्रोसेस करें कि नहीं, टाइम एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। तो फिर हमने ये भी देखा कि 97% लोगों ने ये जाना कि हम ये वेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और आप अगर, जैसे गांधी सर ने कहा, अगर आप विश्वास करते हैं तो ये जरूर मुमकिन है, ये बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने बताया कि 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनका एग्जांपल्स हमने दिया और जिन्होंने वो बदलाव करके दिखाया है, तो ये जरूर हो सकता है। कहां शुरू करें? सिम्टम्स आपने देखे, सिम्टम्स प्रोसेस कैपेबिलिटी में, लीड टाइम में, डिफेक्ट्स में, यील्ड, प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाए होंगे। अब बारी है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, रूट कॉज पे जाने की, जड़ तक जाने की। उसके लिए हमने केस स्टडी भी देखा कि कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आपकी मदद करते हैं। अगर आपको ये नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, जैसा सर ने भी कहा कि हम सारी बातें तो एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे वेबिनार के थ्रू नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम ये प्रोग्राम्स आपके लिए स्पेशली कर सकते हैं। तो आप हमें जरूर लिखिए अगर ये प्रोग्राम्स आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए करने हैं, वेदर टू असेस योर हेल्थ, टू फाइंड आउट द सिम्टम्स, वेदर यू नो, टू डेवलप दैट विजन, टू डेवलप दोज आईज, स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी हैं हमें बेहतर बनाने के लिए। स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो हम कैसे समझेंगे कि हम समान रूप से कैसे काम कर रहे हैं। फिर सिम्टम से रूट कॉज तक जाने के लिए हम आपको कोच करेंगे, हम आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, और जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। इसी समराइजेशन के साथ मैं अभी क्वेश्चंस लेना शुरू करूंगा। गांधी सर, मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करूं सर? यस सर, यस प्लीज। थैंक यू सर। सो सबसे पहला सवाल जो आया था वो था कुछ एक्रोनिम्स, जैसे कि ITR, WIP क्या है, तो इन्वेंट्री टर्न्स रेशियो है वो, और WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये कुछ सवाल थे लोगों के बेसिक। उसमें एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण आया, वो ये था कि हम ITR को कैसे इंप्रूव करें। तो मैं यहां से शुरू करूंगा सर कि ITR कैसे हम इंप्रूव करें। ये 2 बार सवाल ये आया है आज, यहां से शुरू करते हैं सर। Yes, thank you for that question.
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो गिना जाता है, तो वो एक रेशो है, जैसे हमारा ईयरली सेल्स कितना है और हमारी इन्वेंट्री कितनी है, कितनी बार वो इन्वेंट्री वो साल में वो सेल करने में कितने दिन तक हमें काम आती है। अभी ये जो रेशो है, इसको यदि हमको इम्प्रूव करना है मतलब क्या है, तो हमें उसका इन्वेंट्री को देखकर क्या इतनी जरूरत है, कितनी हमारी इन्वेंट्री ये अनटच रहती है, बहुत लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, लाइफ ऑफ द आइटम। इन्वेंट्री कम हो गई, जब इन्वेंट्री कम हो गई इसका ही इफेक्ट आता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बढ़ जाता है। दूसरा होता है शॉप फ्लोर में WIP, बहुत WIP पड़ी रहती है। आप यदि आंखों से देखना चाहेंगे तो आप एक हाथ में चौक लीजिए और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में उसमें डेट लिख दीजिए, आपने कब देखा था वो वहाँ प्रोडक्ट, बाद में देखते रहिए कि 2-3 दिन तक, 3 दिन तक, 5 दिन तक उसे हाथ ही नहीं लगता है। जैसे मैंने कुछ फोटो में बताया कि मशीनिंग के लिए कास्टिंग पड़ी है, 5 दिन उसको पूरेगा, 5 दिन की कास्टिंग रेडी रखकर हमें क्या मिला, क्यों ना आगे बढ़ सके। सो इन WIP जब कम की जाती है, हमने बहुत सारे शॉप में काम किए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि WIP वो बिलीव नहीं कर पाते हैं। आज के सेशन में भी 2-3 क्लाइंट खड़े हैं, बैठे हैं, वो सुन रहे हैं मेरे को और सोचते होंगे गांधी सर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, उनको पता है कि बिलीव नहीं करते थे कि इतनी WIP कम हो सकती है। तो बस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तभी कम होता है जब हम WIP कम करते हैं, इन्वेंट्री कम करते हैं, बढ़ता है। यस, आई होप it has answered the question. थैंक यू सर। यस, बहुत सारे क्लूज जानने वालों को मिले हैं इसमें कि कैसे शॉप फ्लोर पे इन्वेंट्री पहचाने और वर्क इन प्रोग्रेस को भी समझें, फिनिश गुड्स से पहले मटेरियल्स को, इन्वेंट्री को कम करें। इसी से जुड़ा हुआ अगला एक सवाल है व्हिच सेज विल इट बी हेल्पफुल टू हैव मोर सीरियल इन्वेंट्री और सीरियल कंट्रोल आइटम्स इन इन्वेंट्री इंस्टेड ऑफ मिन मैक्स लेवल्स। ट्रेडिशनल तरीका है मिन मैक्स बनाने का, क्या हम सीरियल कंट्रोल इन आइटम्स रख सकते हैं, ऐसा सवाल है एक पार्टिसिपेंट का। आई होप इट्स वेरी क्लियर। हेलो, आप सुन पा रहे हैं सर? Please be patient with us. There is some technical disruption. Anup, can you hear us? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। यस सर, Yeah, we can hear you, sir. You are able to? Yes, sir. Yes, please go ahead, sir. Oh, okay. So हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम करने का एक कोई तरीका होता है, उसमें हम लोग सोच लेते हैं कि चलो 1 महीने में एक बार PO डालेंगे, चलो मैं 2 महीने में एक बार खरीदेंगे, कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अवॉइड करेंगे। ये सब हमारे अजम्पशंस हैं, इसको देखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हमारे पास मिन मैक्स होनी चाहिए। जो चीज बहुत स्टैंडर्ड है, अवेलेबल है, तो हम क्यों स्टॉक करें? जो स्टैंडर्ड है हम नहीं करेंगे, हमारे सप्लायर्स लोग करेंगे, तब वो हमें अच्छी तरह सप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो भी इम्प्रूवमेंट की बात की, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ को, जो भी कंपनी लेवल का मैं
इम्प्रूवमेंट की बात की, वो खाली कंपनी के लिए नहीं है, वो कंपनी की बाउंड्री ना समझे, वो कंपनी में सब स्टेक होल्डर, सप्लायर लोग इन्वॉल्व करे, customer, company and supplier, all they have to join together, then lots of efforts and lots of opportunities and lots of solutions will come. So जो min max level है वो उसको रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल ये स्टॉक उसी के कारण बढ़ता है। जब प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, इंजीनियरिंग चेंज हो जाता है, तब ये नॉन मूविंग में कन्वर्ट होता है। सो इसको डिटेल में स्टडी करने की जरूरत है। ओके पीयूष? यस, थैंक यू सर। डेफिनेटली डिटेल में स्टडी करने के बाद ही हम गहराई तक जाएंगे, तभी हमें उसका जवाब मिलेगा। एक सवाल है सुमैया जी का, उनका कहना है कि लीडरशिप इफेक्टिवनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द टॉप मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट से सब शुरू होता है, सब खत्म होता है, तो उनका क्या उनके लिए वहाँ से शुरू होता है, खत्म नीचे होता है। शुरू वहाँ से जरूर होनी चाहिए। मैंने जैसे बताया, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने तो मोदी जी से बात की, मोदी जी से शुरू हो जाएगा, फिर कंपनी के सीईओ से, एमडी से, ओनर से चालू होता है कंपनी के लिए। और जैसे मैं अभी बता रहा था कि कंपनी ने ये सोच थोड़ी सीमित नहीं रखनी चाहिए, दे हैव टू एक्सपांड देयर बाउंड्रीज, they are the owners of not only their factory, they are also the owners of their supply chain, logistic, suppliers, vendors, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हम हमारी खुद की सोचते रहेंगे और दूसरे के लेग पुल करेंगे तो ये सिस्टम कॉम्पिटिटिव नहीं बनेगी। सिस्टम कॉम्पिटिटिव तभी बनती है जब ये सबको हम इंक्लूजन करते हैं। इंक्लूड करो सबको, शॉप फ्लोर के वर्कर से लेके वेंडर तक, सप्लायर तक, इंक्लूड करके बात करो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकलेगा, लॉट ऑफ वेस्ट विल गेट रिड्यूस, यू विल सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। अगला सवाल है मनोहर जी का। मनोहर जी सेज ही इज फ्रॉम द मर्चेंट नेवी and there is a limited staff and he is probably mostly in the middle of the sea, no shore support except telephonic support, and they start their day with 10 minutes toolbox talk meeting involving all staff. So we ask how to carry out work, tools ready, safety, and how to carry out in a nutshell. That's his first question. He has put in 2-3 questions. Let me read the second question also. Now then he says, then we review work in progress at tea time at 10 a.m. and again at 3 p.m. Update how far job is reached, how to finish by today, if not securely and safely, so on. So each process or duties of each person, company, goals, safety first, etc. are defined and written. Now, these are evaluated every year. So his question is how to carry it out effectively and get it done, because there is less support from the people who are at land and other support teams. So he has to get things done on his own, being on a ship, on a merchant navy ship. Yes, sir. Yes. This is a difficult. Thank you, Manohar. He is my classmate. We were together in college. And Manohar, Navy is, you are more disciplined. You have got, yes, hardship is there. You are away from the land. But if you really study, that is the reason why there is so much quality control in that. That is why so much importance is given to the preparation. When you start, you have got lots of preparation, you have got lots of checklists. You all start your mission with so much preparation. हम लोग कंपनी में जब काम करते हैं तो इतना प्रिपरेशन नहीं होता है। तो ऑर्डर हाथ से ऑर्डर और वो हाथ से काम, इधर में डिजाइनिंग चलता है, उधर में प्रोक्योरमेंट पैरेलल हम चलाते हैं। आपका ऐसा नहीं होता है। सो द रीजन इज बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम द लैंड, यू हैव गॉट लिमिटेड टाइम, you have to act very quickly. Safety is very important. That is why every equipment which is supplied on the ship is completely different. अरे इसीलिए तो हम सेकंड हैंड 20 साल पुराना शिप वाला आइटम खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें पता है उसमें बहुत सेफ्टी फैक्टर है। तो ये सब चीजें उस इंडस्ट्री के लिए ये स्पेसिफिक प्रोसेसेस ध्यान में देख के की जाती है। आप भी करते हैं,
मुझे पता है आप मेरे को सवाल पूछ के मेरी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि कितनी केयर ली जाती है और आप लेते हो। तो यही तो डिसिप्लिन चेकलिस्ट होती है। जब एरो इंडस्ट्री है सिमिलर, जब वो every time that pilot is driving, what is he doing? Every time he fills the checklist. There is another co-pilot who is checking. क्यों? Because वो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रोज का काम है। फिर भी दे आर ऑल एक्सपर्ट, बट फिर भी चेक चेक चेक। हम लोग इंडस्ट्री उस प्रकार नहीं चलाते हैं। हमारे यहाँ चेकलिस्ट ये नाम के वास्ते होता है, काम के वास्ते नहीं। यहाँ रोज रेगुलर रिगरस, तभी तो क्वालिटी आती है, तभी तो सेफ्टी आती है, तभी तो सिक्स सिग्मा कहलाते हैं। तो ये जो है हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। आज जैसे मैंने बताया इंडस्ट्री का वक्त आया है वो ही जिगर बताने का। सो थैंक यू मनोहर, प्राइवेट में बात करेंगे और डिटेल तेरे से समझने के लिए। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। सो बिल्कुल स्टैंडर्ड्स हो या स्टैंडर्ड वर्क, चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम हमें आसान जरूर बना देती है उसके अंदर। सो अगला सवाल है मोनिका सेठ जी का। शी सेज फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इफ नॉट बैच प्रोसेसिंग then what process can be implemented when there is a lag between two consecutive processes? एक बहुत ही शॉर्ट फ्लोर टेक्निकल सवाल है। ठीक है जी, थैंक यू मैडम। बद्दी आ जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं और प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज वन ऑफ द थिंग व्हिच यू से दैट यस दैट इज वन, बट इन बिटवीन द प्रोसेस कैसे हो? जब ये प्रोसेसेस बैलेंस नहीं होती है तब इन बिटवीन WIP बढ़ती है। एक प्रोसेस में सपोज हमें रिलायबिलिटी कम है तो इसलिए हमें डर लगता है कि अरे अभी ये बंद पड़ जाएगा, तो हम उसमें WIP बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, उसका डिमांड रेट से ज़्यादा वहाँ काम करते हैं क्योंकि हमें सेफ्टी रखनी है। या कोई प्रोसेस में रिजेक्शन रेट ज़्यादा हो इसलिए हम सेफ्टी बनाते हैं। सो इन बिटवीन प्रोसेसेस में रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम हो या वहाँ का रिजेक्शन का प्रॉब्लम हो या उसकी कैपेसिटीज का प्रॉब्लम हो, उसके कारण इन बिटवीन WIP तैयार होती है, बैलेंस नहीं होता है। और इसमें यही काम करना जरूरी पड़ता है कि उसके प्रोसेस इंप्रूवमेंट कैसी हो, रिलायबिलिटी कैसे बढ़े और कैपेसिटी बैलेंस कैसी हो, टैक टाइम जिसको बोला जाता है, उसके हिसाब से वो दोनों फैसिलिटी, दोनों कंसेक्यूटिव प्रोसेस कैसे चले, यही तरीका होता है बैलेंसिंग का। आई होप मैंने शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश की। कोई डिटेल और क्वेश्चंस उसके साथ में रहेंगे। मैडम जी आपसे बात कर लूंगा। यस, थैंक यू सर। सो अगला सवाल है इमरान का। इमरान सेज द मेन बैरियर फॉर आवर मैन्युफैक्चरिंग इज गेटिंग ट्रेन्ड लेबर एंड नॉट स्किल्ड। तो हमने स्किल पे बात की, नॉलेज पे, अंडरस्टैंडिंग पे, विजडम डेवलप करने पे बात की। उनका कहना है कि व्हाट इज योर सजेशन टू गेट लेबर ट्रेन्ड वेल, ट्रेनिंग उसकी कैसे बढ़िया से कर सके? सब रेडीमेड नहीं मिल सकता है, सब रेडीमेड कभी नहीं मिलता है, हमें उनको ट्रेन करने की जरूरत है। हम बहुत बात हम 5 साल तक करते रहेंगे कि हमें ट्रेन नहीं मिलता है, लेकिन हम ट्रेनिंग के ऊपर में ध्यान कितना देते हैं? अरे 20 दिन के अंदर में ट्रेन आदमी बन जाता है यदि आप, वो आदमी फिक्स है, वो आदमी की प्रोसेस फिक्स है, आपको पता है कि वो कैसी करनी है, बस 3 दिन में लोग ट्रेन होने वाले मैंने देखे हैं। तो training is not a big issue provided you are very serious about your expectation, provided you know the job, you are standardized the job, and यदि वो standardization है, इसमें सब लिखा हुआ मिलेगा आपको, जिसमें मैं कुछ इतने शॉर्ट में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये ट्रेनिंग करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग किया जा सकता है, उसके मेथड्स हैं, और यदि करेंगे तो ऑपरेटर लोगों का ट्रेनिंग तो बहुत ईजी है। दिक्कत आती है बड़े लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, उनको सिखाने में, उनको ट्रेन करने में, उनके माइंडसेट चेंज करने में काफी वक्त लगता है। लेकिन आप यदि शॉप फ्लोर के स्किल्ड वर्कर के बारे में बात कर रहे हो तो वो जरूर हो सकता है।
बिल्कुल सर, मुझे आपके बातों से एक याद आ रहा है, मसाकी इमाई की किताब में लिखा था कि वर्कर्स आर द फर्स्ट टू रेजिस्ट एंड मैनेजर्स आर द लास्ट टू चेंज। सो वाकई सही फरमाया। जी। सो इसमें हम आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है, इनका सवाल है, स्नेहा कुलकर्णी जी का सवाल है कि हाउ टू बी एफिशिएंट इन ईच अदर्स वर्क एरिया ड्यूरिंग कोविड-19, क्योंकि अभी सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहें वो भी एक नॉर्म है, और बहुत सारे छोटे छोटे नॉर्म्स है, वियरिंग मास्क और ये सब चीजें। तो हाउ टू, अब हमको कोलैबोरेट भी करना है, सो हाउ टू बी इफेक्टिव सर इन दिस सिचुएशन? देखिए, ये जो हम मास्क की बात कर रहे हैं, थोड़ी केयर लेने की बात कर रहे हैं, हमारे सेफ्टी, जब हम समझेंगे कि ये हमारे सेफ्टी के लिए है, तो अब ये अड़सर नहीं बनती है। यू हैव टू गेट यूज टू इट बिकॉज इट इज न्यू फॉर अस। पिछले 10 दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं मास्क लेके 8 घंटा काम कर सकता हूँ। जब मैं ये लोगों को बताऊंगा तो क्या मुझे वो जमेगा? सो एवरी इवनिंग वॉक for 1 hour with a mask, I am trying and seeing. So धीरे 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 I am getting used for that. ऐसे लोग हैं जो एवरी टाइम, डॉक्टर्स लोगों को तो मास्क पहनना ही पड़ता है जब वो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 5-5 घंटा, ऐसे नर्सिंग स्टाफ है जो 6-6 घंटा ऑपरेशन थिएटर में होती है और मास्क पहने होती है। सो वो तो पूरे गाउन पहने होते हैं, है ना? तो पीपी किट इतना इजी नहीं है पहनना, बहुत अनकंफर्टेबल है, बट वो करना पड़ता है। सो हम उसे रेजिस्ट करेंगे तो बहुत तकलीफ होता है, उससे रेजिस्ट नहीं करेंगे, वी बिकम फ्रेंडली टू इट, इट विल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट योर एफिशिएंसी, नंबर 1। नंबर 2, एफिशिएंसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे काम में से क्या है। क्या हमारे दिमाग में कभी तो भी गलती चलती है? इतना तो होगा, आदमी है, गलती तो करेगा। ये सब कचरा थॉट्स निकालने चाहिए, ये जरूरी है। ये जब निकल जाएंगे तो फिर राइट होगा। यदि गलती हो भी गई तो उसकी सुधारने की बात करें, ब्लेमिंग मोड पर ना जाते, हम उसको सुधारेंगे तो ये जरूर होगा। थैंक यू जी, 2 और सवाल लेंगे सर। इट्स 12:22 राइट नाउ, सो वी कैन रैप अप बाय 12:25। 2 और सवाल हैं। पहला सवाल अमीश पुरोहित जी का ले रहा हूं मैं, जिसमें वो जानना चाहते हैं कि हाउ टू मोटिवेट वर्कर्स इन दिस सिचुएशन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी। क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करनी है, दोनों साथ। अमित भाई, बहुत दिनों के बाद सो देखिए, ये कंटिन्यूअस सवाल इंडस्ट्री के सामने रहते आया है कि हमारे वर्कर लोग ढंग से काम नहीं करते, क्वालिटी देते नहीं है, प्रोडक्टिविटी देते नहीं है। ये पूरा कल्चर बन चुका है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मैनेजर लोग बहुत प्रोडक्टिव है, ऐसा नहीं है। हमें देखने के लिए वो नहीं है। जब हम वर्कर को पूछेंगे तो हमको सही फीडबैक देंगे कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं। तो पहला बात तो हमारा खुद का माइंडसेट, हमें दिखाई देना चाहिए कि उसको कितनी मेहनत है, वो कौन सा मेहनत का काम कर रहा है, क्या हार्डशिप हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे, क्या उसकी एनवायरनमेंट है, कितना डस्ट फ्री एनवायरनमेंट है, और उस कारण उसके प्रोडक्टिविटी को मार खाते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये टोटल सोशियो सिस्टम है, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है। उसको काम का पैसा कितना मिलता है, वो कैसे काम करता है, हम कैसे जुड़ते हैं उससे, कितना रिस्पेक्ट देते हैं उसे, हमने कितना समझाया है उसको कि क्या क्वालिटी होती है, और तब ये बढ़ेगा। वो सब जगह देखते रहता है। हम ये सोचते हैं कि उन्होंने यदि पूरा क्वालिटी काम करना है, हमने नहीं किया तो चलेगा, हमारा इनपुट क्वालिटी खराब रहा तो चलेगा, लेकिन उसका क्वालिटी तो वो सब देख पाता है, और वो उस सब देखने के बाद में खुद का डिसीजन लेता है। वो अपना खुद का मास्टर होता है। वो दिखाई देता है वर्कर, लेकिन वो मालिक होता है, उसके काम का मालिक बन जाता है वो, और वो अपने खुद से चलाता है। वो उसको जितना करने का है वो उतना ही करता है, वो अपना डिसीजन लेता है। आप सिंसियरली उससे जब बात करते हो तो उसका रिस्पॉन्स कुछ अलग रहता है। ये आपने भी अनुभव किया है पुरोहित जी। तो ये जरूरी है, कंटिन्यूअसली काम करने का जरूरी है, तो क्वालिटी भी मिलेगी, प्रोडक्टिविटी भी मिलेगी। जी जरूर जरूर सर। पुरोहित जी से भी अनुरोध है, और जानकारी के लिए गांधी सर को कांटेक्ट करें, फोन करें उन्हें। अगला सवाल मैं प्रदीप जोशी जी का ले रहा हूं सर। he says he is very happy with the session, and he got multi vision spectacles through a wonderful session. His question is, what are other means
summarily which may be used to save significant money. What are the recent trends in using these means or tools? Trends भी क्या है latest और नए क्या है इसमें, और tools चाहिए और हथियार चाहिए सर उन्हें? बहुत हथियार है, जरूर। सबसे पहला हमने आज इम्पोर्टेंट स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश कर रहे थे। कंपनी के अंदर में सबसे बड़ा वेस्ट जो दिखता है वो मटेरियल का, और बिकॉज दैट इज ऑलमोस्ट 50 और 60% ऑफ योर प्रोडक्ट। सो उसको किस तरीके से हमने कम किया जा सकता है, वेस्ट रिडक्शन हो सकता है, उसकी डिटेल में बात की। वी हैव नॉट टेकन अ डिटेल लुक एट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, वी हैव नॉट टेकन दैट, वी हैव नॉट टेकन look at how dependence on the labor. Today most of the people are facing problem because of migrant labor. So हमारी उन जरूरतों को कैसे कम किया जा सकता है, lower dependence on that, क्या लो कॉस्ट ऑटोमेशन हो सकते हैं, ये इसकी बात हो सकती है। सो कंपनी के अंदर में बहुत सारे रिसोर्सेस है, कौन से कंस्ट्रेनिंग बन रहे हैं इसकी जानकारी करने की जरूरत है, और सभी के ऊपर एट ए टाइम काम नहीं करने की जरूरत है, ना करो। We will not be able to put up a fire everywhere. So एक एक जगह जो सबसे बड़ा important है वही तो कला है, that is the skill. What is more important to your industry? ये आइडेंटिफाई करके पूरा फोकस अटेंशन उस पर देंगे तो काम होगा। सभी टूल एट ए टाइम जरूरत नहीं है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप तरीके से फोकस बहुत जरूरी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें एक नितिन रजौरी सर का एक सवाल आ रहा है, अभी लेटेस्ट आया है। उनका कहना है कि हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट बैलेंस व्हेन एवरी जॉब प्रोड्यूस्ड इज डिफरेंट एंड नॉट ऑफ ए बैच टाइप। सो आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? नहीं, मैं समझा नहीं, रिपीट करो थोड़ा, मैं कुछ नहीं सुना। His question is, how would you bring about a balance when every job is different? It is not from a batch type of production system. या मेरा तो पूरा लाइफ कस्टमाइज जॉब बनाने में ही गया। 20 साल तक ऐसे ही कंपनी में काम किया जहाँ बैच पता ही नहीं था। मैं एक्चुअली बहुत सोचता था कि मैं बैच इंडस्ट्री में जाऊँ। कस्टमाइज जॉब में भी दिक्कतें ज़्यादा होती है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी बड़े मस्त निकलते हैं। मोर स्पेशल कॉजेस वहाँ दिखाई देते हैं और वो स्किल डेवलप करने की ज़रूरत होती है। कस्टमाइज जॉब में हम लोग जब ध्यान देने का रहता है, क्योंकि उसमें डिज़ाइन से लेके शुरू होता है, डाइज नए होते हैं, स्किल डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। वी हैव टू हैव मल्टी स्किल्ड पीपल, we have to be very prompt, very careful. We cannot assume that it will go right, because every time there is an opportunity to go wrong. So customized job में अलग तरीका होता है। Definitely it is not a must type of thing, but यहाँ जाता है तो एक ही जॉब जाता है, वो पास वालों के भी बहुत बड़े हाल होते हैं। हाँ, पूरी की पूरी बैच रिजेक्ट होती है, तो उनके प्रॉब्लम्स अलग है, उनके तरीके अलग है। प्रोजेक्ट इंडस्ट्री, कस्टमाइज प्रोडक्ट इंडस्ट्री, इनके तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों में इम्प्लीमेंट हो सकता है। चलिए, बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं मेरे ख्याल से। यस सर, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एक सवाल जो छोटा सा है जो मैं खुद ही दे सकता हूँ, डू यू कैटर टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एज वेल? यस वी डू। हमें लास्ट ईयर मैक्रो एंटरप्राइज कैटेगरी में अवार्ड भी मिला था। हमने बहुत छोटी छोटी स्मॉल कंपनीज को हम मदद करते हैं। उनमें से कुछ कंपनियां आज हमारे साथ इस वेबिनार में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। आपको और जानकारी चाहिए, हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, info@vedzent.com पे मेल लिखिए या फोन नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको और सहायता कर सकते हैं। एक फाइनल सवाल है भौतिक कुमार भट्ट जी का। उनका कहना है कि हाउ लीन कंस्ट्रक्शन कंसेप्ट कैन बी डिप्लॉयड, कैन यू गिव सम ओवरव्यू? सो लीन कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसका जवाब उन्हें चाहिए। ये आप ही जवाब दीजिए। मैं भौतिक कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, और हम एक सेशन भी करने वाले हैं अगले 2 वीक्स के अंदर, स्पेशली लीन कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे है और कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यों करना चाहिए।
सो डिटेल जानकारी आपको उसमें मिलेगी। अगर आपको तुरंत कुछ जवाब चाहिए तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको चैट बॉक्स में अपना नंबर भेजता हूँ, आप कॉल कीजिए और मिलेगा। भौतिक कुमार जी का रिस्पॉन्स भी आया है, थैंक यू सो मच। सो सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंटली उन्होंने आधे घंटे और दिए सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने सवाल आपने दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you very much. Thank you all the participants. सभी लोगों का, प्रदीप जोशी जी, इनामदार जी, नितिन सर, सुमैया जी, मोनिका जी, मनोहर जी, सुरजीत, everybody is saying thank you and they are very saying they are very much thankful to us and thankful to you for this inspiring session to listen in our language। और ये सुनकर उन्हें बहुत आनंद प्राप्त हुआ, बहुत जानकारी मिली है। सो विजन टीम की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। हम और भी वेबिनार आपके लिए लेकर आएंगे, इस तरह के फ्री वेबिनार हम करते रहेंगे, लोगों के साथ बांटते रहेंगे, जो हमने जाना है, सीखा है, बताते रहेंगे। ओवर टू यू गांधी सर। Thank you very much. We will close the meeting. Be in touch with us. Contact me if you have any specific question. Thank you From again. my side also, I Yes, thank sir. each and every participant for being with us. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। So we close the meeting now. यस।